class 10. Today I am going to discuss about central nervous system, that is brain. As we know that brain lies in our head. It is soft, whitish, delicate organ that is covered by three membrane. But when you see your brain, you open your brain, the brain look like this, as walnut. In this walnut there are two parts, right part and left part. It is cerebral hemisphere. Right part control left part of the body and left part control right part of the body. Now we are going to elaborate about our brain. Brain is covered by three membrane. Outer membrane is called dura mater, middle membrane is called arachnoid and inner membrane is called pia mater. All these three membranes covered our brain and it protect our brain and provide mechanical shock. In between them there is a fluid that is called cerebrospinal fluid. This cerebrospinal fluid protect our brain from mechanical shock, or it is act like as shock absorber और ब्रेन को झटका देने से ये बचाता है. The average weight of adult male is about 1500 gram or 1.5 kg. The average weight of adult women is about 1200 grams or 1.2 kg. In newborn babies, the brain weight is approx 350 to 400 gram. Now, I will tell you about how to draw diagram of brain, because brain is very complex structure. That's why you have to face too many difficulties. So look at here. First of all, we will draw from here. This is brain stem. From this part, you will do a semicircle. In this part, you have to draw a tree-like structure. You can see here. This is the part of forebrain, because forebrain is the largest part of our brain. This is called cerebrum. It is the part of forebrain. Look at here. This is the part of hindbrain. This is cerebellum. This one, pituitary gland. And this one, pons, and this one, medulla oblongata. Pons, medulla oblongata and cerebellum is the part of hindbrain. And what about midbrain? Midbrain is rudiment form, or it is in rudiment. That's why it cannot distinguish, or it connect forebrain and midbrain. Now you will fill this cerebrum part with the C structure. Simple C. एक बार आप इसको सीधा सी लिखिए और एक बार आप इसको उल्टा सी लिखिए. इस तरह से आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह फिल्ड कर सकते हो. यदि आपको बोर्ड में ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए आए तो इतना स्ट्रक्चर बनाने से आपका डायग्राम में नंबर मिल सकता है. इस तरह से आप इसको पूरे ब्रेन में आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके पूरे ब्रेन को फिल्ड कर देंगे.
यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा जो ब्रेन है यहाँ से यहाँ ये पूरा पार्ट आपका फोर ब्रेन, जिसमें आपका आता है सेरिब्रम, पिट्यूटरी, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो दीज आर अबाउट द ब्रेन एंड इट इज कवर्ड बाय, इसके पहले हमने आपको बताया कि 3 मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है। यहाँ आप मेम्ब्रेन बनाइए। सबसे आउटर हमने क्या बताया था, डूरामीटर, और इनर हमने क्या बताया था, पायामीटर, और इन बिटवीन देम ये क्या है आपका एरेक्नॉइड है। ये हो गया डूरामीटर आउटर, पायामीटर, ये हो गया DAP। इसको आप कोड फॉर्म में भी सीख सकते हैं। उसी तरह हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। इसको आप लोग कोड वर्ड में CPM के नाम से भी जान सकते हो। तो दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो एक और डायग्राम हम इसमें बताएंगे आपको कि सिर्फ सेरिब्रम का पार्ट जो है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, अब सेरिब्रम का पार्ट, क्योंकि सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब आप अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को आप बंद करोगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी में आप देख रहे हो कि ये लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों फिंगर जो है वो कौन सा पार्ट बनाएगा, सेरिब्रम का फ्रंटल पार्ट। और ये मिडिल और इंडेक्स ये कौन सा पार्ट बनाएगा, फ्रंटल के बाद क्या होता है, पैराइटल। पैराइटल के बाद जो आपका बैक ऑफ थंब है ये ऑक्सीपिटल, और थंब का रीजन जो है वो टेम्पोरल, और जो आप पाम का रीजन यहाँ देख रहे हो ये आप ये पार्ट आपका सेरिबेलम कहलाता है। और जो ये रिस्ट पार्ट है, ये रिस्ट पार्ट ब्रेन स्टेम कहलाता है। यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ इस तरह से आप बनाओगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये आपका क्या बनाएगा, फ्रंटल रीजन। और फिर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये दूसरा पार्ट, ये है आपका पैराइटल। इसके बाद आपका आता है बैक ऑफ थंब, तीसरा रीजन। बैक ऑफ थंब आपका बनाएगा ऑक्सीपिटल, और इसके बीच जो आपका मुट्ठी बनाते थे थंब रीजन जो है ये आपका फोर्थ पार्ट, और ये होगा आपका टेम्पोरल। और जो आपका ये पार्ट जो पाम रीजन में आता है ये आपका नंबर 5th पार्ट कहलाएगा, और ये होगा सेरिबेलम। और जो मुट्ठी बनाने के बाद जो ये ब्रेन स्टेम है ये आपका ब्रेन स्टेम। इस तरह से आप सेरिब्रम का जो मेन पार्ट है, क्योंकि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ब्रेन के मॉडल के द्वारा इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएंगे।